انشاءاللہ یہ گفتگو چلے گی۔ اب ہم ہمارے جو اگلے مہمان ہیں حضرت اقدس قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حبیب الامت حضرت مولانا قاری حبیب احمد صاحب بانوی دعوت برکاتہ العالیہ ناظم جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا اور اپنے شورا دارالعلوم دیوبند سے درخواست ہے کہ حضرت والا اپنی قیمتی گفتگو سے اس کانفرنس کو مزید کامیاب بنائیں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال رسول الله سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم۔ بزرگ و دوستو، میں اپنی کمائیگی کی وجہ سے اور علم کسی قسم کی صلاحیت لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہی دامنی کی وجہ سے میں جرأت نہیں کرتا کہ میں ایسی موقع اساتذہ امت علماء کے سامنے میں اپنی کچھ بات کہوں۔ بڑوں کی یہ بات ہوتی ہے۔ آج کی اس محفل میں قائد ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہ موجود ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ مسرت کی گھڑیاں ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے جو بیان کر رہے تھے حضرت مولانا جعفر صاحب تمام اکابرین کے منظور نظر اور تمام اکابرین کی آس اور امیدیں اور ان کی بد لانے والے شخصیت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ان میں جو بات اصلاحی معاشرہ کی لائن سے اور اپنے آپ کو بچانے کے لائن سے جو بات کہی وہ بڑی حقیقی بات ہے۔ وہی بات تھوڑی سی اتری۔ یہ وقت کا اہم موضوع ہے، سبھی کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع خاص کی نشر و فراغ اور اس کی تمام تاریخ، اس کے متعلق آگاہی اور سبق ہم سب کے لیے حضرت مولانا دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے۔ ہم سب انشاءاللہ اس پر پابند ہوں گے۔ حضرت مولانا جعفر صاحب کی جو بات تھی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں، وہ بات دل میں آئی کہ ساری باتیں سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کس طریقے سے اس سے عہدہ برا ہوں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے کیسے ثبوت دوش ہوں گے، ہم مواخذہ سے کیسے بچیں گے، یہ ہماری ذمہ داری، اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ یہ حقوق العباد کی لائن سے ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے مفید بات کہلائے۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں رہنے والوں نے مستقبل کو دیکھ کر کے اور اپنے جو صدقہ جاریہ کو بنا کر کے
अल्लाह की दी हुई तमाम सलाहियतों का सही इस्तेमाल करके गए, और यही एक मोमिन कामिल की अलामत है। हल्के जो समंदार नफ्सा वो आमिल लिमा बादल मौत। किस तरीके से मुसलमानों के लिए दीनी मफाद के लिए और मुस्तक़बिल में दीन की बका दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के जरिए से उसको मजबूत बनाने के लिए जैसी शक्लें जो तरीके इख्तियार किए और इस तरीके की तमाम चीज़ें जो देखे गए, और इसमें जो बदनवानियाँ हो रही हैं और जो शिकवे हो रहे हैं, हमको जो शिकवा है सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि हम इस मौके से, इस मजमून को, इस मौके से जो बातें हैं देख करके अपने अंदर तो ये गौर करें, या जो लदीन आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अरे ईमान वालो अपनी फिक्र कर लो कि हम कहाँ तक किसी दर्जे में मुलव्वस तो नहीं है। इस हुकूक तलफी में हमारा किसी तरह से कोई साहिबा, किसी किस्म का कोई ताउन या फिर उस हदीस का मंशा जो भी आपके सामने हज़रत मौलाना ने बयान फरमाया कि बुराई के रोकने के लिए जब तक आदमी अपने अनथक कोशिशों के साथ बुराई को न रोके, उस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों से सौदाबारा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, जो शख्स किसी अम्र मुनकर को देखे और उसकी सलाहियत हो, उसकी बात चलती हो और उसकी पहुँच हो, तो वो इस तरीके से पूरे जबरूत ताकत के साथ, कुव्वत के साथ उस अम्र मुनकर को रोकने की कोशिश करे, हाथ से पकड़ कर को रोक दे। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, दूसरा दर्जा ज़बान का आता है, अपनी पूरी कुव्वत के साथ ज़बान से उस चीज़ को रोके। ये एक मौजू ख़ास है, बहुत अहम है। उस मौके में भी हदीस पेश की जा सकती है और भी तमाम बुराइयों के तहत, और फिर अपनी ज़बान से इस्तेमाल करने के बाद भी कोई ऐसा दर्जा न हो तो फ़बिक़ल्बी, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, और अगर इसकी भी ताकत न हो, माहौल न हो, दुनियावी मफाद हम सामने रखते हैं, अम्र मुनकर में हम अपनी जिम्मेदारी को बचा नहीं लाते, दुनियावी मफाद हमारे सामने होता है, हमारे सामने मोहब्बतों का तकाज़ा होता है, कभी ख़ानदानी जथे, कभी अपनी मकबूलियत, ये सब पे हमको ठेस पहुँचने का अंदेशा होता है, तो हम दीन की बात अच्छी तरीके से नहीं पहुँचा पाते। हालांकि दीन के बाद अम्र मुनकर, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना वही कर सकता है जो वला यख़ाफ़ून लौमता लाइम। तमाम इन चीज़ों से, दुनिया के मफाद से, इज़्ज़ो शर्फ़ हासिल होने से, दुनियावी तमाम मकसद से बिल्कुल उसी निगाह बाला तर हो, इधर ध्यान हो, तभी अल्लाह तबारक तआला उसको जिम्मेदारी से उसको सुबोधेश फरमाते हैं। वरना हकीकी तौर पर इस अम्र मुनकर में हम सब बड़ी कोताह होते हैं। तो ये देखना है, ये जो खतरा है, आज तो हम जिसमों का शिकवा करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को देखें। ऐसा तो नहीं कि हम किसी तरीके से मुलव्वस हैं, हमारे मामलात में किराएदारी इस तरह की चीज़ों पर जो कब्जा होता है, बहुत सा सभी नज़र डालना चाहता हूँ मैं, वक्त कम है, हम अपने मामलात को देखें। किराएदार हम होते हैं और उसमें हमारी किराएदारी और उसकी जो अजर होता है वो जिम्मेदार के बगैर मर्जी को होता है, हम उसी को तय करके बैठ जाते हैं। हमारी निगाह दुनिया के कानूनों पर होती है, दुनिया के कानून में हम जीते हुए होते हैं। लिहाजा बस ऐसे किराएदार हम होते हैं जिसमें मालिक की रजामंदी नहीं है, तो वो बिल्कुल गसब का तरीका होता है। मकान है, इस तरीके से और जायदाद है और तरह तरह की हद तलफी है, उसमें हम तमाम तरीके से इबादतें करते हैं, खैरात भी करते हैं, ऐसी दुकान की कमाई से, ऐसे मकानों पर जो हमने बगैर किसी की रजा के हमने खुद अपने किराए की रकम तय कर ली है, और उसमें सामने वाला अदल राजी हो या न हो, हम उसमें इबादतें करते हैं, सज्जे करते हैं, तरह तरह के अमाल खेल करते हैं। ये गसब की जो
जो शक्ल हमने इख्तियार कर रखी है, कैसे हमारे अमाल कबूल हो सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में बरकत आ सकती है, कैसे हमारी तिजारतों में वो हलाल माल कहलाने का और दीन का फ़रोग़ हमारी ज़िंदगी और हमारे नस्लों में कैसे आ सकता है। तो ये मौजू कोई बेदार होने से हर शख्स सोचे हम इस तरीके से कहीं मुलव्वस तो नहीं है। दादा के ज़माने की दुकान है और हम अच्छे अच्छों से बात हुई, 2000 में दुकान मार्केट की बड़ी बात है। यहाँ तो 30,000 और 40,000 में दुकान न मिलती और हाजी नमाजी कहता है कि नहीं, असल में हमारे दादा के ज़माने की दुकान है, ये मकान हमारा पुराना है और फिर हमने बहुत से काम कराए हैं। अलमिया ये है कि कसम को पुख्ता करने के लिए उसमें हम काम कराते हैं। अब कैसे छीनोगे, तुम्हारे मकान में हमने तो 4 लाख रुपए लगा दिए। ये तमाम मामला बगैर रजामंदी के हैं। बगैर रजामंदी वाले मामला सरासर हम मालूम कर लें बिल्कुल हराम का दर्जा रखते हैं। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मुतदय्यन थे, कहा भाई असल में हमारे दादा के ज़माने का ये दुकान है, इतने दिनों से हमें वो तो हमने बढ़ा दिया इतना, मतलब इसमें तो 35-35 रुपये 40-40 रुपये की किराए हैं। ये समझदार दीनदार मुसलमान कहता है दुनिया की मोहब्बत ने उसने इतनी घेरा है, इतना घेरा है, अक्ल उसकी अंधी हो गई है और अक्ल अंधी होती है। ये रिस्क के जब हालात के दरवाजे अपने ऊपर खोल दिए जाए तो फिर अमल की तौफीक नहीं होती, जो अमाल हो भी जाते उसमें कोई तासीर और बरकत नहीं होती, वो सिलसिला बिल्कुल मुस्तक़िल ख़त्म हो जाता है। फिर भट्टा इतना बुरा होता है कि वो औलाद तक को बात आती है, जब औलाद नाफरमान होती है और पूरी बेचैनी का वो पूरा माहौल घरों में होता है और मालों में, दुकानों में, तिजारतों में ये बोले जाते हैं कि माल बहुत आता है लेकिन माल में बरकत नहीं है। कभी जहन में बात नहीं आती धोखे से भी कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि हम किसी तरह का कोई हद तलबी कर रहे हैं, किसी का हक मारे हैं, किसी की तादाद का सब ये है जो आम माहौल, आम मसाइल या दुनिया के मामलात की वजह से हमारे जो दीनी मामलात हैं वो अलग है। हमारा मामला, हमारा मुकदमा, हमारे मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। हम इस दर्जे मजबूर करते हैं कि बिल्कुल सामने वाला हो जाता है, कोई शक्ल नहीं बनती। हमारे ये बस खुशी का सामान है कि हम इतने किराएदार हैं, वो रोता है, उसके लड़के रोते हैं, उनका कोई बस नहीं चलता। बस इस तरीके से हम ज़्यादा पे काबिल होते हैं, रसम की हैसियत अपने अंदर रखते हैं। यह तलबी नहीं तो क्या है, यह तलबी इतनी बुरी है कि अब कैसे हुकूक अदा करेंगे। ज़मीन हो या जायदाद हो, ऐसी वजीतें आ रही हैं हदीस में, एक बारिश ज़मीन पर कब्जा करने की वजह से एक दिन भारी ज़मीन बना दी जाएगी, तोप में डाल दी जाएगी। लेकिन इस तरह की रवायात, इस तरीके के मसाइल हम सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल बिल्कुल मान हो चुके होते हैं। और फरमान नबी के मुताबिक अला इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इला असाबुल मा, आगाह हो जाओ, ये कुलूबों को भी जंग लगता है। जब जंग लगता है तो उसमें खैर की बात नहीं समाती, हक की बात नहीं समाती और उसकी ज़िंदगियाँ पलट जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, आदमी अंधा बहरा हो जाता है माल की मोहब्बत में। और वो फरमाए नबी के मुताबिक वो आपने जो फरमाया था, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लम युबालिल मर्उ अम्मा अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक माल की भूख ख्वाहिश इतनी होगी कि वो अपने इस नशे में, माल के कमाने में और दूसरों को रीस करने में अपने ईमानी सलाहियत को बेदारी वो बैठा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि माल के कमाने का इतना नशा होगा दुनिया के बाज़ारों में और दुनिया के माहौल में और दुनिया के मैदानों में जो तनाफुस होगा, हर शख्स एक दूसरे से बढ़कर आगे बढ़ना चाहेगा।
माल के कमाने में आदमी अंधा हो जाएगा, वो परवाह नहीं करेगा। माल की मोहब्बत की सदा हो जाएगी, वो कहेगा कहीं से भी आए माल, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आएगा, आए बस माल आए, इस तरह का भूत उसको सवाल हो जाएगा। तो ईमानी बसीरत हो गई। आज ऐसा तो नहीं है कि ऐसी ज़मीन और जायदादों पर हम कब्जा करके हम सिर्फ माल में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आखिरत को चौपट में बर्बाद करना चाहते हैं। ये मौजू बिछड़ने के बाद हर शख्स अपने मामला का जायजा ले, अपने इस ज़िंदगी को देखे कि कहीं तरीके से आदमी के जन्नत में जाना आसान है। अली साहब फरमाते थे बस आदमी कोशिश करे कि किसी का हक उसके ज़िम्मे न रह जाए, कोशिश करे अपनी ज़बान हाथ पैर तकलीफ से किसी तकलीफ न पहुँचे, और आदमी अपने रिज़्क़ रोज़ी का हलाल तरीके का इंतज़ाम कर दे। इन तीन बातों का ख्याल आदमी कर ले तो फिर बड़ी इबादतें न हो, अहकाम पूरे हो जाए, बड़ी इबादतें न हो, बड़े उम्रे बड़े इस तरीके से और भी चीज़ें न हो, तो अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद है कि वो जन्नत का मुस्तहिक़ बन जाएगा। ये हुस्न माशरत है, ये अखलाक की चीज़ है। बुजुर्गों दोस्तों, बस इतनी बात हम अपने अंदर जोड़ लें, अपने अंदर अपने मामला का तजिया कर लें कि हम कहीं किसी तरीके से इन गुनाहों में मुलव्वस तो नहीं है। और ये बड़ी कसरत से देखी जाती है, ये बाजार किराएदारी का ऐसा गर्म हो गया है, इतना माहौल इसमें मुलव्वस है कि उस गुनाह को हम गुनाह नहीं समझते और अपना पूरा हक समझते हैं। पुरानी किराएदारी और पुरानी ज़मींदारी और पुराना अपना इसमें कब्जा और इसमें खर्च मजीद सारी चीज़ें, तो हमें मसाइल का इल्म है। लेकिन बात वही है कि जब नाजायज़ तरीके से ऐसे माल और ऐसे हराम ग़िज़ा इस्तेमाल की जाएगी और दीनी बसीरत खो बैठेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा सबहुल मा, आगाह हो जाओ, बुरी बुराइयों मुलव्वस होकर के इस हराम ग़िज़ा के खाने की वजह से इन क़ुलूबों को भी जंग लगता है, जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है जब पानी पहुँचता है। तो फिर रसूलुल्लाह मुमाजिला हुआ इस जंग के दूर करने का। आप फरमाया कसरत मौत और उसकी तैयारी, और आपने फरमाया अल्लाह की याद, ज़िक्र के हल्के, दीनी मुज़ाकरे, मसाइल को दोहराना, मामला की दुरुस्तगी से वो क़ुलूब बहाल हो जाते हैं, वो ईमानी बसीरत बहाल हो जाती है। मैंने आपके सामने और जो आयत तिलावत की है, पढ़ी है, उसमें सदक़े की फजीलत और हर एक को अपने लिए सदक़े के लिए तैयार रहना, अपने अल्लाह की दी हुई तमाम सलाहियतों में, माल असबाब में अपने लिए मरने के बाद ज़िंदगी लिए इस्तेमाल करना, इसकी तलक़ीन की गई है। मौजू बहुत लंबा है, मेरी ज़बान भी इधर उधर फिसल रही है और तबाही एतबार से तबीयत नहीं चलती। हम सब यकीनन हज़रत मौलाना के बयान और इस मौके की पूरे नसीब फलाह को समझने के लिए और उससे हिनालात से मुस्तैद होने के लिए और उनके लिए मुकाबला करने के लिए अपने अंदर पूरी जुरात हिम्मत के साथ उसके लिए इस सबक के लिए हम बैठे हैं। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना इस पर पूरी तरह रोशनी डालेंगे। ख़ास मौजू है और इसी बात पे अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।